So it is question number 16 of exercise 9.3. Solution. Find a GP for which sum of first two terms is -4. Fifth term is 4 times the third term. Okay. So first of all you will take, let B be the first term, R be the common ratio. Of GP under consideration. Okay. So sum of first two terms is -4. So you write given sum of two terms is given as -4 and fifth term, that is T5, is equal to 4 times the third term. Okay, these conditions are given. So we apply sum to n terms formula here and general term formula here. So it will be B1 minus R raised to power 2 upon 1 minus R is equal to -4, and from here we have B R raised to power 4 is equal to 4 times B R raised to power 2. तो ये B दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर यहाँ पर है तो इधर लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, which implies R is equal to plus minus 2. So here you can write R is equal to plus minus 2. So it is value of R. You have calculated common ratio like this. Now you put this value of R here. So you take when R is equal to 2. So this expression will give you B1 minus 4 over 1 minus 2, that is equal to -4, which implies B minus 3 over -1 is equal to -4, which implies B is equal to, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर, तो इट इज -4/3. ओके, तो B इज इक्वल टू -4/3. तो इसको आप मेंशन कर दीजिए, व्हेन R इज 2 B इज -4/3. ओके, नाउ वी विल टेक R इज इक्वल टू -1. नाउ वी टेक R इज इक्वल टू -2. So and when R is equal to -2, B1 minus -2 का स्क्वायर अगेन 4 upon 1 minus R, minus minus plus, so it is plus 2 here and -4 here, which implies B minus 3 upon 3 is equal to -4, which implies B is equal to, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू 4. तो इस तरह से आपने R इज इक्वल टू -2 के लिए B की वैल्यू 4 निकाल ली. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द GP. ओके, GP इसमें निकालनी है. तो केस 1, फर्स्ट GP, दैट इज GP बनाने के लिए आप क्या करेंगे, BR स्क्वायर एंड सो ऑन, ये GP बनेगी. तो आप केस 1 में R को 2 लेंगे और B को -4/3, तो ये आ जाएगा -4/3. देन BR, so -8/3. देन you take BR square, so it is 4 4 the 16, so -16, you can write -16 here.
because r square is 4, 4 4 is 16, so minus 16 by 3 and so on. Okay, and case 2, here GP will be when r is minus 2. So you take b as 4, first term. So first term is 4. You multiply it by r, br, that is minus 8. Then again multiply it by minus 2, that is 16. Then again multiply it by minus 2, that is minus 32. Then again multiply it by minus 2. So minus minus plus, and you have 64. Okay, and so on. तो इस तरह से आपने देखा कि सेकंड जीपी ऑल्टरनेटिंग आ रही है, प्लस माइनस एंड सो ऑन, और फर्स्ट में ये। तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ध्यान से लेंगे। फर्स्ट टर्म ये लेनी है तो कॉमन रेशियो आप ये लेंगे, अगर फर्स्ट टर्म आपको ये लेना है तो कॉमन रेशियो ये लेना है। इस तरह से आपकी दो जीपी बनेंगी, फर्स्ट जीपी एंड सेकंड जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन। If fourth term, 10th term and 16th term of GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP. So here also you will write this line. It is common, so you can put this line everywhere. Okay. This one. Let B be the first term and R is the common ratio of GP. So it is given that fourth term, that is T4 is x, T10 that is 10th term is y, and T16 Tholme term that is z. Prove that x, y, z are in GP. तो इससे हम सॉल्व करेंगे। It will be b r raised to power 3 is x. From here b r raised to power 9 is equal to y, and from here we have b r raised to power 15 is equal to z. Okay, so it is 1, it is 2 and it is 3. अब देखिए यहां पर शो क्या करना है, टू शो x, y, z आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो इसको ऐसे करके आप यहां पर बॉक्स में बंद कर सकते हैं और एरो मार्क कर सकते हैं कि ये हमें शो करना है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो यू विल राइट इफ x, y, z are in GP, then common ratio will be same. Okay, common ratio throughout same हो. So let us check. Consider y by x. Okay, इससे कॉमन रेशियो निकलेगी, y by x हम निकालेंगे। तो y और x की वैल्यू 1 और 2 से पुट करेंगे। तो इट इज b r रेज टू पावर 9 अपॉन b r रेज टू पावर 3। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, एंड हेयर यू हैव 9 minus 3, so r raised to power 6. Okay, also you consider z upon y. तो z और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो z इज b r रेज टू पावर 16 है, 15, यस r रेज टू पावर 15 अपॉन y की वैल्यू है b r रेज टू पावर 9। क्योंकि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस।
कॉमन रेशियो सेम होगी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आएगा। तो इनसे आपको पता लगा कि y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। ओके, ये आपने चेक कर लिया, दैट इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 6। तो कॉमन रेशियो सेम आ रही है, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा एक्स वाई जेड हमारा। ठीक है, कॉमन रेशियो थ्रू आउट सेम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये एग्जाम में आता है। यहाँ पर 8 दे रखा है, एग्जाम में 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 1 और 9 नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा आप इसको। सॉल्यूशन, फाइंड सम टू n टर्म, तो एस एन निकालना है आपको, और यहां पर पहली टर्म 8 है, प्लस 88 प्लस 888 प्लस सो ऑन। ओके, यहां लिख सकते हैं आप अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक, दैट इज इक्वल टू, यहां पर 8 कॉमन ले लेंगे, स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, ये ब्रैकेट में n टर्म्स आएंगे। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 8 बाई 9, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, इट विल बी 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कीप इन माइंड। नाउ you will write this 8 by 9 as it is, and इस 9 को लिखेंगे 10 minus 1। 99 को आप लिख सकते हैं 100 minus 1, that is 10 square minus 1, and इसको लिख सकते हैं 1000 minus 1, तो 1000 is 10 raised to power 3 minus 1 plus so on up to n terms। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा, 8 बाई 9 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस सो ऑन, n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 10 की पावर n। ओके, माइनस 1, देन माइनस 1 एंड सो ऑन, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन। ओके, प्लस 1। ओके, ये 1 1 1 जो है आप ऐसे करके लिख सकते हैं n टाइम्स, n टाइम्स ये आपके 1 1 आ रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए, दैट इज इक्वल टू 8 बाई 9 एज इट इज, और ये जीपी बन रही है 10 में, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, तो यहां पर लिखेंगे 10 बी आर की पावर n, दैट इज 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ओके, आर माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, माइनस ये 1 1 1 n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा n। क्लियर, तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या एक स्टेप और जाके आगे सॉल्व कर लीजिए, तो इट विल बी 80 अपॉन 81 10 रेज टू पावर n माइनस 1, ये एज इट इज, माइनस 8 बाई 9 n। तो इस फॉर्म में भी छोड़ देंगे आप, नो प्रॉब्लम, यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो आप देखेंगे यहां से, एक बार आप ये वाला क्वेश्चन फिर समझा दोगे क्या? डेफिनेटली, डेफिनेटली, दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को।
4 नंबर का ये पेपर में आना ही आना है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि सम टू एन टर्म निकालना है। तो पहली टर्म 8 है, फिर 88, फिर 888, फिर 8088। तो आपने ये यहाँ पर सम टू एन टर्म एस एन लिखा और यहाँ पर 8 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, अप टू एन टर्म्स ऐसे लिखना है। ओके, अब यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा 1 बिकॉज 8 1 जा 1, 11 बिकॉज 11 8 जा 88 एंड सो ऑन। ओके, 1 बनाना होता है। यहाँ पर 9 नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा। तो आपको 2 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर एग्जाम में आ सकता है। 2 2 का बन जाएगा सीरीज, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से। तो अब इसको इस स्टेप पर आकर 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई किया। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ब्रैकेट में चला जाएगा। तो 1 9 जा 9, 11 9 जा 99 और 111 इंटू 9 इज 999 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, इसके बाद 8 बाई 9 एज इट इज रहेगा। इस 9 को हम लिख लेंगे ऐसे 10 माइनस 1। इस 99 को हम लिखेंगे ऐसे, क्लियर, दैट इज 100 माइनस 1। और 999 को हम लिखेंगे ऐसे, क्लियर, दैट इज 1000 माइनस 1 प्लस सो ऑन। और ये एन टर्म्स हैं। इसके बाद 8 बाई 9 एज इट इज रहेगा। सारे टेंस को कलेक्ट कर लेंगे, 10 की जो पावर्स हैं वी विल कलेक्ट दोज। तो यहां पर 10 आ जाएगा, ये 10 यहां पर आ गया, 10 स्क्वायर ये आ गया, 10 क्यूब ये आ गया, और यहां पर एन टर्म्स हैं तो 10 की पावर एन ये ऐसे आ गया। बाकी आपका बचा -1 -1 -1, तो माइनस कॉमन ले लिया। ये आपके पास 1 1 1 1 1 हो गए एन टाइम्स। ओके, तो अब इसको यहां से आगे देखिए। ये जो 10 की पावर्स हैं ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। इसमें सम टू एन टर्म का फार्मूला हमने लगाया। सम टू एन टर्म होता है बी, आर की वैल्यू 10 है यहां पर, तो आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ओके, इस फार्मूले में बी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10 पुट कर दी तो हमारा ये आ गया, और माइनस कॉमन 1 1 1 एन टाइम्स है तो ये एन आ गया। इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, दैट इज योर आंसर। एग्जाम में आता है कि शो दैट। ओके, तो इसमें शो दैट नहीं आया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर टू यू? यस सर। वेरी फाइन। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस में इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी है। डेसिमल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 0.8, 0.88, 0.888 एंड सो ऑन। तो डेसिमल वाले को भी इसी तरह से करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ देखिएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस डू दैट। सॉल्यूशन। So it is question number 19. Let us do this quickly. यहां पर b को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, मैं लिख देता हूं। ये लाइन हमारे हमेशा क्वेश्चन में लिखना है। लेट b बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी अंडर कंसीडरेशन। ओके, अब यहां पर उसने 2 जीपी की टर्म्स दी हैं, तो पहली फर्स्ट आप ऐसे लिख लिया करें एग्जाम में, तो कभी गलती नहीं होगा। और सेकंड जीपी के लिए आप ऐसे लिख लिया करें, तो कभी गलत नहीं होगा। ओके, और यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट जीपी की टर्म्स हैं सीक्वेंस की, 2 देन 4 देन 8 देन 16 देन 30। ओके, तो आप देखेंगे 5 टर्म्स हैं ये, तो n इज इक्वल टू 5। इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। और दूसरा दिया हुआ है यहां पर 128 देन 32 देन 8 देन 2 देन 1/2। ओके, अब वो कहता है कि इनका सम निकालिए प्रोडक्ट करने के बाद। तो आप इनका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 8 8 64, 16 दूनी 32, और यहां पर आप देखेंगे 32 का आधा हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इस तरह से आपका ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इसका सम निकालना है, तो S5 निकालना है आपको। सम ऑफ 5 नंबर 256
प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीके से हमने लिख लिया। अब एक और इसमें अप्लाई कर सकते हैं तरीका कि S5 इज इक्वल टू 16 को पहले लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में सम तो वही रहेगा, तो 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो ये जीपी है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म बी बराबर 16 है और कॉमन रेशियो आपकी देखेंगे 32/16 2 आ जाएगा, 64/32 2 आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो 2 है। तो आप S5 का फार्मूला लगाएंगे और Sn जो होता है यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए b r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो b हमारी फर्स्ट टर्म है 16 और कॉमन रेशियो है 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1। तो 2 -1 इज 1 और 2 की पावर 5 आप निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 और 32 में से एक गया 31। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 एकम 16 हासिल लगा 1, 16 की 48 और 1 49। ओके, तो S5 is 496, इट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन था और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, 4 को मल्टीप्लाई किया इससे और 8 को मल्टीप्लाई किया इससे और 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 32 को 1/2 से। इस तरह से हमने ये दोनों सीक्वेंस यहाँ पर लिख लिए, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करके जीपी बना ली और 5 नंबर का सम हमने निकाल लिया। तो ये यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप ऐसे भी सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 256 पहली टर्म हो जाएगी, कॉमन रेशियो हो जाएगी 1/2, तो 1 - 1/2 की पावर 5, 1 - 1/2, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जीपी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।